अच्छे हैं। Welcome back to the show again. Today, on our show, we have a very, very interesting personality, a very happy soul. She wears many hats from being a mother to being a harmonium teacher, and above all, the founding member who has qualified for all the IPRU Star Clubs. That's right, all the IPRU Star Clubs. Yes, she's been with iPro from day one, and that is 21 years of iPro now. This is going to be one of a kind episode. You have to really be with us. Well, her achievement with iPro 21-time Star Club winner, 4-time top of the table, the TOT winner, 6-time court of the table, COT winner, an 11-time million dollar round table winner, and 21st time lifetime MDRT ARC winner. This is commendable. Though she's a Pune veteran, her heart is full of love for the Chennai Super King star, Thala, Mahendra Singh Dhoni. And did you know that she traveled thrice in just about 1 month to UK to watch Indian cricket matches? Now that is her love for cricket. Her backbone in life, her husband, Mr. Upendra Saharsabudde, and her daughter, Shweta, are her strong support system. So what are we waiting for? Ladies, gentlemen, and each one of you, welcome to Life Influences Bande Achhe Hain, and joining us is our guest, Miss Sadhana Saharsabudde with us right now. Ma'am, very happy, very thrilled to have you in the show. How are you doing today? Yes, I'm fine. Thank you, Nitin. It's such a wonderful honor to us to have you in the show because you are with iPro since inception. And today I think I'm going to be getting the most insightful knowledge, the journey, of course. And to all our viewers, it's going to be a motivating episode because you are here with us. So let's dive into it already and take you back in the early days, early life, family, you're growing up. Tell me about your parents and who are you or who were you close to? Yeah, my parents, my father was working with LIC and my mother was working with GIC, United India. So my background is this. Wonderful. एक्चुअली मैं पहले म्यूजिक टीचर थी. मैंने कॉमर्स ग्रेजुएट किया है और मैं म्यूजिक मतलब वो भी ऐसे ही हो गया कि मेरे स्कूल के बच्चे मतलब मैं स्कूल में हारमोनियम प्ले करती थी और मेरे सोसाइटी वाले 2-3 लोग उन्होंने बोला कि आप स्टार्ट कर लो, इसलिए मैंने स्टार्ट किया स्कूल डेज में ही. तो 16 इयर्स तक मैं क्लासेस ले रही थी और स्टार्ट किया 2 लोगों से और इन 16 इयर्स टाइम फ्रेम में 120 स्टूडेंट्स थे मेरे पास. Wow, that is so beautiful. इंश्योरेंस बैकग्राउंड थी लेकिन मैं उसके आसपास भी नहीं थी क्योंकि मेरा फील्ड इज डिफरेंट. लेकिन आफ्टर 16 इयर्स ऐसा लगा कि थोड़ा कुछ चेंज करना चाहिए, तो मेरे डैड ने मुझे रेकमेंड किया कि आप इंश्योरेंस एजेंसी ले लो. ICICI प्रूडेंशियल इज द बेस्ट कंपनी. तो मैं ऐसे ही वॉक इन गई थी और एक्चुअली आइडिया भी नहीं था कि क्या करना है. मतलब जो पहचान वाले हैं वो मेरे से ले सकते हैं, लेकिन जो मुझे जानते नहीं है वो क्यों लेंगे ना मेरे से. जी हाँ, जी तो थोड़ा सा ये था, लेकिन मेरे मैनेजर्स भी अच्छे थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और मेरे डैड तो थे ही, तो इसलिए स्टार्ट किया और स्टार्टिंग से ही अच्छा सक्सेस मिला. हम बात करेंगे अपनी शादी के बारे में. हाउ डू यू एंजॉय the most of your wedding day and how did your better half assist you on your journey?
Yes, he is very very मतलब सपोर्टिव पर्सन। मैंने जब ये स्टार्ट किया तो उसने मुझे अच्छे से ये किया, मतलब आप कर सकते हो। मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं था उस टाइम पर, क्योंकि मैंने एमबीए किया नहीं है, कुछ भी नहीं, बैकग्राउंड कुछ भी नहीं था। मार्केटिंग मतलब हाउ टू सेल द पॉलिसी। तो उसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, क्योंकि वो इंजीनियर है, बी एमबीए किया है उन्होंने। वो ही इज वर्किंग विद फोर्ब्स मार्शल लास्ट 35 इयर्स। सो उन्होंने मुझे ये किया कि आप कर सकते हो। और मुझे ड्राइविंग मेरी पैशन है क्या एक्चुअली। बात है, मैं जब 8th स्टैंडर्ड में थी ना, तब से मैं कार चला रही हूँ। क्या बात कर रहे हो सही में? तो मतलब मेरा और अलग अलग लोगों से मिलना, ये भी मेरी हॉबी है। तो फिर मतलब दोनों वजह से स्टार्ट हो गया ये जर्नी। What has been the most special part about qualifying to not one but all the star clubs? That is like incredible to hear. So you tell me about your side of story. एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया था जनवरी में, मेरा ट्रेनिंग हुआ था जनवरी में। हाँ, और तब एक कॉन्टेस्ट कंपनी ने लॉन्च किया था कि एक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया था कि 80 लाइव्स करना है और 3 लाख प्रीमियम करना है कलेक्ट। और जितने लोग करेंगे, ऑल इंडिया लेवल पर था ये, और जितने लोग करेंगे उसमें से सिर्फ टॉप 10 एडवाइजर्स विल बी क्वालिफाइड फॉर प्रेसिडेंट्स क्लब। तो मैंने स्टार्ट तो किया था जान में, लेकिन मेरी एग्जाम ही नहीं हुई थी। मेरी एग्जाम हुई जून में और okay, एक्चुअली स्टार्ट किया जुलाई में। तो 6 okay, महीने ऐसे ही निकल गए थे। तो हाँ, ये पॉसिबल ही नहीं था कि मैं कहाँ, मतलब इतना कर ही नहीं पाऊंगी, ऐसा था। मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ मैं कर पाऊं, मतलब इतना बिजनेस हो सकता है, क्योंकि टॉप 10 एडवाइजर्स थे। मतलब ऑल इंडिया लेवल पर तो उस टाइम पर बहुत एडवाइजर थे, उसमें से सिर्फ जी 10 हाँ, लोग क्वालिफाई करेंगे। जी हाँ, और सिर्फ ऐसे ही मंथ ऑन मंथ हम लोग कर रहे थे। एवरी मंथ मेरा 30-35 पॉलिसीज हो रहा था। मैं उसके ऊपर एक्चुअली ध्यान भी नहीं दे रही थी कि मैं क्वालिफाई करूंगी, मतलब वो मेरा टारगेट ही नहीं था। लेकिन लास्ट मंथ में मैं टॉप 10 में आने लगी, तो थोड़ा सा लग रहा था कि थोड़ा करे, लेकिन उसके लिए कोई लिमिट लिमिट पता नहीं थी ना कि कितना करना पड़ेगा। जी जितना हाँ, करेगी उतना अच्छा है। लेकिन फाइनली हो गया और मैं क्वालिफाई कर गई। क्या तो बात है, तब एक चीज डिसाइड की थी कि अभी इतना किया है तो एवरी ईयर एमडीआरटी और स्टार क्लब ये तो करना ही है। करना इतना ही है। मिनिमम टारगेट रखा था। टेल मी कि वन द मोस्ट मेमोरेबल अगर मोमेंट आपको कोई याद है तो वो कौन सा होगा? एक्चुअली 2000, मतलब मैंने 2001 से स्टार्ट किया, तो एमडीआरटी सीओटी टीओटी ये होता है मालूम था। एमडीआरटी तो मैं कर रही थी, सीओटी भी 2-3 बार हुआ था, लेकिन टीओटी मेरा हुआ नहीं था। तो अच्छा, वो मेरा एक ये था कि नहीं, मतलब ये पॉलिसी हम लोग ये कर रहे हैं बिजनेस, तो इसमें एक बार तो लाइफ में टीओटी करना चाहिए। जी हाँ, तो वो फाइनली 2010 में पॉसिबल हुआ, मतलब क्या 10 बात साल है, लग गए। एवरी ईयर मैं सोचती थी, क्योंकि कैसा है ना, जैन टू दिसंबर ही उसका पीरियड रहता है। ट्रू ट्रू, तो अगर नहीं हुआ दिसंबर तक, तो फिर वापस से जैन से जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। जी हाँ। तो 2010 में फर्स्ट टाइम मैंने टीओटी किया। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, मोमेंट ऑफ ट्रुथ विद कस्टमर्स। शेयर विद अस सम ऑफ योर एक्सपीरियंस ऑन हाउ यू हैव हेल्प वेरियस फैमिलीज, इंडिविजुअल्स, यू नो, इंश्योरेंस लाइफ में, कि जिन्होंने आप जिसका जिंदगी आपने बनाया है। या एक्चुअली बहुत सारे कस्टमर्स है, क्लाइंट्स एक्चुअली, क्योंकि क्लाइंट भी नहीं, अभी वो तो मेरे फैमिली मेंबर्स जैसे हो गए हैं। हाँ, मतलब फर्स्ट मेरा, मतलब जैसे मैंने स्टार्ट किया, तो मैं जिस क्लाइंट के पास गई थी फर्स्ट टाइम, तो उन्होंने पहले ही मुझे मतलब हम लोग तब 1 लाख 5 लाख 10 लाख समय शोट देते थे, तब यूलिप वगैरह था ही नहीं। जी हाँ, राइट। तब उसने मुझे बोला था, मतलब हम लोग ये कर रहे थे कि वो 10 लाख का तो कवर लेगा, उसका प्रोफाइल वगैरह सब देख के। तो उसने बोला मुझे कि मैं 1 करूंगा। तो 1 मतलब हम लोगों को लगा 1 लाख।
तो हाँ, बाद में पता चला उसको 1 CR करना था। तो क्या मैं और बात मैनेजर मतलब 1 CR के ऊपर कितने जीरोस होते हैं, क्योंकि हमारा जो है। हमने सीखा था तो उसमें 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख ऐसे ही कैलकुलेशन हमने किए थे। तो हाँ, हायर सम एश्योर्ड रिबेट कितना होता है और जीरोस कितने होते हैं, ये सब कुछ भी आइडिया नहीं था। तो वो मतलब फर्स्ट ये था क्लाइंट का एक्सपीरियंस। बाद में सब मतलब मिलते गए और सबको हेल्प मिलती गई। और बेसिकली आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि जो भी हमारे प्लान्स है उसमें जिन्होंने भी एंटर किया है ना, सबका वैल्यूएशन बहुत अच्छे से हुआ है। क्या मतलब बात। सब लोग अभी भी मुझे फोन करके बोलते हैं कि आप आपसे वो इन्वेस्टमेंट किया, पॉलिसी लिया, तो उसका मेरे फ्लैट लेने के लिए काम आया, फिर मेरे बच्चों का स्कूलिंग, एजुकेशन, मैरिज, सबके लिए उसकी हेल्प हो गई। तो और वो ईयर ऑन ईयर मेरे से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्या मतलब बात अभी है। जो पुराने क्लाइंट्स मतलब 2002-3 में जिन्होंने लिया था ना, उनके पास मिनिमम 20 पॉलिसीज रहेंगी, मिनिमम, वाओ, ज्यादा। वाओ। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, माय पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ की ओर। हमने स्टार्टिंग ऑफ द शो में बोला था कि आपको क्रिकेट बहुत ज्यादा पसंद है, एंड यू आर लाइक अ ट्रेमेंडस क्रिकेट फैन, सो मच दैट यू वेंट एंड ट्रैवल टू यूके थ्राइस इन अ मंथ टू वॉच इंडियन क्रिकेट टीम प्ले। तो ये जो प्यार है, इंटरेस्ट है क्रिकेट की ओर, ये कब आया आपके जीवन में और ये कौन लेकर आया? ये स्कूल टाइम से ही था। मतलब जब हम अच्छा। 1983 वर्ल्ड कप जीत गए थे, उस टाइम पर भी मैं 10th स्टैंडर्ड में थी। ओ तभी वाह। एग्जाम बाजू में रख के मैच देखते थे। तब तब सही से। में। और महेंद्र सिंह धोनी, और उनका तो लास्ट ये था वर्ल्ड कप, इसलिए वर्ल्ड कप मुझे था। देखना था। और एक्चुअली मेरे पास जब मैं फर्स्ट टाइम गई तब मेरे पास सिर्फ एक ही टिकट था, एक ही मैच का टिकट था, ओके। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। और फिर वहां पर एक लड़का मिला, वो बोला कि मेरे पास है ऑस्ट्रेलिया का टिकट, आपको चाहिए तो ले सकते हो। और सेम प्राइस में लिया, तो मैंने वो भी लिया। फिर मेरे क्लाइंट है, वो रवि शास्त्री के बहुत अच्छे दोस्त थे, तो उन्होंने मुझे पासेस दिए। तो वापस आ गई, वापस गई। और फाइनल देखना था मुझे एक बार, मतलब हाँ, जब टॉस फर्स्ट टाइम देखा था तभी ऐसा था कि एक मैच देखनी चाहिए। जी हाँ। लेकिन पॉसिबल होगा ये नहीं मालूम था, लेकिन पॉसिबल हुआ। पॉसिबल हुआ। What keeps you consistent in your career journey every single day? ये तो बहुत डिफिकल्ट है बताना, क्योंकि मेरा मतलब रूटीन स्टार्ट होता है 5:30 इन द मॉर्निंग, और डे एंड होता है 12:30 मिडनाइट। जी हाँ। तो मतलब जितने भी मतलब क्या क्या करना है, मेरे इतने टास्क रहते हैं ना, मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ क्लाइंट के पास जाना है, बहुत हाँ, कुछ करना पड़ता है दिन में। मतलब किसी को यहाँ से वहां ड्रॉप करना रहता है कुछ, मतलब मैंने बताया जैसे कि म्यूजिक फील्ड में भी हूँ, तो वो भी मेरा एक रहता है, कुछ प्रोग्राम्स वगैरह हम लोग बनाते हैं। जैसे मैं ड्राइव करती हूँ तो वो भी मेरा साइड में चलता रहता है, कौन कौन से सॉन्ग्स लेने हैं, क्या है उसके म्यूजिक पीसेस, मतलब वो चलता है। फिर क्लाइंट का भी किसका रिन्यूअल, किसका न्यू, मतलब न्यू बिजनेस तो रहता ही है। लेकिन ये सब चीजें रहती है, तो मतलब ऐसा कुछ ये नहीं कर सकती मैं दिन में, इतनी बिजी रहती हूँ, और ये सब प्लान ही करना पड़ता है मुझे। थोड़ा इसके बारे में बताइए। How did harmonium as an instrument come in your life? And how did the journey of musical continues? क्या अभी भी आप प्ले करती हैं? प्ले हाँ, करती हैं तो क्या प्ले करती हैं? yes. अभी भी मतलब हिंदी सॉन्ग्स, एक्चुअली मैं क्लासिकल मुझे इतना पसंद नहीं है, हाँ, लेकिन लाइट म्यूजिक क्लास अपना बॉलीवुड सॉन्ग्स या लाइट म्यूजिक, मतलब वो मैं ये करती हूँ, प्ले करती हूँ। और बचपन में ऐसा कुछ मैंने सीखा नहीं था किसी से, हाँ, लेकिन कुछ सुना था। हमारे पास मेरी दादी की हारमोनियम थी,
तो एक दो बार ऐसे ट्राई किया तो मुझे आ गया वो सारे गमा पधनिसा जो रहता है ना बेसिक, तो आ गया। फिर थोड़ा थोड़ा बजाना चालू, मतलब जो कोई गा रहा है तो मैं वो ट्राई करती थी। तो फिर अपना राष्ट्रगीत वगैरह सब किया। तो 5th स्टैंडर्ड से मैं स्कूल में सब फंक्शन में बजाती थी। क्या बात है। तो तब से ये चालू हो गया। तो फिर मैं कॉमर्स ग्रेजुएट किया, लेकिन मतलब तब लोग मुझे बोल रहे थे कि आप आर्ट्स साइड ले लो, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। और मैं मतलब क्लासेस भी लेना चालू किया, मतलब कुछ भी मेरा प्लान नहीं था कि क्या करना है। मतलब बचपन में होता है ना कि मुझे ये बनना है वो बनना है, ऐसा मेरा कुछ भी प्लान नहीं था। ये अचानक से सब कुछ हो गया। जैसे मैंने ये भी सोचा नहीं था कि मैं इंश्योरेंस एडवाइजर बनूंगी। मुझे सिर्फ ड्राइविंग का ये था, और मिलना अच्छा था, अच्छा लगता था, और मेरे डैड ने रेकमेंड किया, इसलिए मैं ये फील्ड में आई। क्या बात तो है। मैं कुछ और करती। एक्चुअली मुझे ब्यूटिक वगैरह ऐसा कुछ करना था, ओह लेडीज माय गॉड। ऐसा मेरे दिमाग में था। लेकिन मेरे डैड ने मुझे बताया उस टाइम पर कि विदाउट इन्वेस्टमेंट अगर आप कुछ करना चाहते हो तो यही कर सकते हो, क्योंकि आप अगर कुछ शॉप वगैरह खोलोगे तो आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा। और अगर आप बंद करोगे, मतलब कहीं जाना है इसलिए आपने 2-3 दिन बंद कर दिया, तो फिर कुछ भी नहीं होगा। और इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा करनी पड़ती है ना, और ट्रेंड्स भी चेंज होते रहते हैं कि अभी ये फैशन आ गया, फिर वो गया, फिर नया आया। तो फिर इट्स वेरी डिफिकल्ट। इट्स वेरी विदाउट डिफिकल्ट। इन्वेस्टमेंट आप ये स्टार्ट करो, अच्छा है। लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं इतना कर पाऊंगी। मतलब ठीक है, जो पहचान वाले हैं उनको मैं बताऊंगी, वो करेंगे, लेकिन जो मुझे जानते नहीं है वो लोग मेरा क्यों सुनेंगे ना। मतलब एब्सोल्युटली ऐसा एब्सोल्युटली। कुछ यही नहीं था कि अ, वो करेंगे ऐसा। लेकिन अभी इतना हो गया है ना, मतलब जो अभी पहचान वाले हैं, उनके पास मैं ज्यादा नहीं जाती, जो पहचान वाले नहीं है उनके पास ही उसमें ज्यादा ज्यादा आ जाता which is a very good thing to do, man. Thank you so much. एक last सवाल before I move to the next segment. ये सवाल है for the people who look up to you as a role model in the industry. कुछ advice उनके लिए? यही मैं बताना चाहती हूँ कि आप ऑनेस्ट रहिए, कस्टम मतलब जो भी आपके क्लाइंट्स कस्टमर्स है उनके साथ, और उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही उनको सजेस्ट कीजिए। क्योंकि मैंने बहुत लोगों का देखा है कि जो उनको अच्छा लगता है, या कुछ मतलब कमीशन ज्यादा होता है, वो लोग सजेस्ट करते हैं। क्योंकि मैं जिनके पास गई हूँ ना, उनके पास ऑलरेडी किसी कंपनी की पॉलिसीज वगैरह रहती है। तो उनको मैं मतलब हम जब बातचीत करते हैं कि क्या क्या है आपके पास, क्या लिया है, तो उनको पता भी नहीं रहता है कि ये पॉलिसी मैंने क्यों ली है। मतलब उन्हें किसी ने बोला और उन्होंने ली, तो उनकी एक्चुअली वो रिक्वायरमेंट भी नहीं रहती है, फिर भी उनको मतलब एक दे देते हैं कि हाँ ये ले लो करके। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एक्चुअली उनकी रिक्वायरमेंट रहती है कि कुछ 4-5 साल के बाद, या बच्चों के एजुकेशन के लिए, या मैरिज के लिए। तो उस टाइप के मतलब जब उनको रिक्वायरमेंट रहेगी तब वो विड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा कुछ Absolutely. देना चाहिए। क्योंकि 30-30 साल का पॉलिसी लेके क्या फायदा, मतलब उसके बीच में उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आफ्टर 30 इयर्स मिलने वाला है, लेकिन वो उनको पता भी नहीं रहता कि ये पॉलिसी क्यों ली है मैंने। And now let's move on to the next segment and understand कि हाँ what makes our life influences बंदे अच्छे हैं, the बंदे अच्छे हैं, and talk to the family members. So देखते हैं कि हमारे साथ कौन जुड़ने वाले हैं अभी मिस साधना सहस्रबुद्धे के परिवार से. So who's joining us? Her backbone Upendra Sarsabudde and her daughter Sweta. So welcome to Life Influences Bande Achhe. How are you both doing? Great, thank you. Good, yes. Thank you. So let's get straight into rapid fire questions now. So साधना जी आप बताइए your favorite iPhone series कौन सा है? 11 Pro. Name all your kittens. Okay, embarrassing, but Gatya, Tagya, and Jackie. So those are the names that we kept to identify them to begin with. But then they got used to it and we got used to it, so we just stuck on. And Okay, Upendra ji, you tell me, what is the weirdest thing you've ever eaten? Rasmalai. It's the weirdest thing. इसमें weird क्या था उपेंद्रा जी? You tell me this. अगर उसमें गलती हो गया ना तो बहुत मुश्किल हो जाए. Okay, let's ask Shweta. Climb a mountain or skydive from a plane. What would you choose?
climb a mountain. Upendra ji, adventure sports you like the most apart from driving? Climbing mountain or trekking? Okay. Sadhana ji, आप बताइए, one day match, T20 or test series? What is your favorite? One day. Well, so wonderful to talk to all of you, and so wonderful to understand that what keeps Sadhana ma'am going is happiness and joy at home. And I think this is exactly so musical that creates a rhythm outside in what she does. And that is why she's one of the superior, or rather a legendary advisor India has ever witnessed, to much more to come in her days. It has been one of an incredible episodes here at Life Influencers Bande Achhe Hain. My name is Mithun Upadhyay. What we love the most about Sadhana ji and family is it's live. Keep it happy. Keep driving. Keep enjoying. And keep it lively at all times. Thank you. Thank you. Thank Thank you. you.